زاہد صاحب سیم ایک ہی پیج کے اوپر. نہیں ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے حسینی صاحب اگر لوگ جب برات کھلتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ پہلے آتے ہوں, پہلے کوئی اور لوگ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں, مختلف باتیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی مڑ جاتا ہے مواد, اس طرف کی گال مواد شروع ہو جاتی ہے, لوگ لڑ پڑتے ہیں آپس میں, وہ دو طرفہ ہی ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ اچانک آدمی کسی کا دماغ پھر گیا اور اس نے اچانک گالیاں اتنی شروع کر دی. یہ گفتگو کے دوران ہوتا ہے. اس کو یہ کہنا کہ جناب ایک آدمی گالیاں دیتا ہے وہ پاگل ہے, ایسے کوئی گالیاں نہیں دیتا. وہ گالیوں کی وجہ ہوتی ہے یا کسی نے گالی دی ہے یا کسی نے پرووک کیا ہے, اس سے گالیاں چھڑتی ہیں. یہ ہے بات, کوئی بھی دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سب ایک ہی طرح کے ہیں. اور اسی طرح یہ کہنا ہے کہ ایک اور بات ہے حسینی صاحب, جی جی ایک اور بات ہے حسینی صاحب, بات یہ ہے کہ ہم احمدی لوگ ہوں یا یہ مسلمان ہوں سارے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو قربان ہے. نہ احمدی کو گالی دے سکتا نہ مسلمان دے سکتا. یہ بالکل ہی الزام غلط ہے. کوئی احمدی گالی دیتا ہے یا مسلمان گالی دیتا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی گالی دے سکتا ہو. البتہ بعض دفعہ کو لفظ نکل جاتے ہوں, یا مثال کے طور پر کسی نے ادھر گالی دی تو اس نے الٹا کے اس کو دے دی, تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نے رسول کریم کو گالی دی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ احمدی مسلمان کوئی کسی کو تہمت لگائے یا گالی دے. بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اچانک گالیاں دے رہے ہیں. یہ آر احمد صاحب گالیاں دے رہے ہیں, کشمیری صاحب گالیاں دے رہے کوئی بھی نہیں دے رہا, ہیں, علی والا صاحب گالیاں دے رہے ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے. ذیشان صاحب گالیاں دے رہے ہیں, یہ بلال بھائی کوئی نہیں گالیاں دیتا. گالیاں دراصل ایکسچینج ہوتی ہے, جذبات جب بڑھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کو دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو مشتعل کرتی ہیں, تو جوں وہ تیز ہوتا ہے بوائلنگ پوائنٹ, تو پھر گالیاں آتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایک آدمی دیتا ہے یا ایک خاص براڈ کے اوپر کوئی فرش ایسا بنا ہوا ہے جس کی رگڑ کی وجہ سے گالیاں ہو جاتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ساری ہی براڈوں پہ, اور سارے لوگ وہی لوگ ہیں سارے جو ادھر ادھر براڈوں پہ گھوم رہے ہیں, کبھی وہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کبھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ایک ہی طرح کے جذبات لے کے گھومتے ہیں, ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں. حسین صاحب جب علامہ صاحب گئے ہیں تو کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دجال کے ماننے والے؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا کہا ہے کیا نہیں کہا, اس کو چھوڑ دیں, اس بات میں کیا رکھا ہوا ہے. یہ اس نے اوپر آتے ہی حسین صاحب جو ہے وہ شروع کر دیا. علامہ صاحب تو ایسی کوئی بات, انہوں نے کہا کہ حسین صاحب میں نے سونا ہے, تو یہ کہا کہ وہ جو ہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں تو وہ چلے گئے ہیں کیا کہ تو بس اسی طرح کی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. تو بات صحت مند بات بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا. صحت مند بات سوچنے میں تھوڑی سی پریشر بڑھتا ہے دماغ پہ, اس کے لیے نئی چیزیں نئے انسٹرومنٹ لگوانے پڑتے ہیں دماغ میں. تو حسین صاحب صحت مند بات بھی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ صحت مند بات نہیں ہوتی, ہاں کبھی کبھی, لیکن جب کوئی آگے ماحول کو خراب کرے گا ہاں تو پھر وہاں پہ آپ صحت مند بات کیسے کر سکتے ہیں؟ علی والا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے, یہ بتا دیں. اور آپ بول رہے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, میرے پیچھے بات کریں تب بھی میں ادھر بیٹھا ہوں. میرے محترم یہ انیشل بات ہے جب یہ بلال نے مجھے گالیاں نکالیاں ماں بہن کی, ٹھیک ہے, اور حسینی صاحب نے سب کو اتارنا شروع کیا ہے. میں نے کسی کو گالی نہیں نکالی, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹے پہ. اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھ پہ لعنت. میں نے کسی کو گالی نہیں نکالی, ریکارڈنگ دوبارہ چلا لیں. اگر میں نے پہل کی ہو یا میں نے گالی نکالی ہو کسی کی ماں بہن کو تو جو ادا کہ میں بتاؤں. آپ کے اصول کے نزدیک کسی سے رشتہ کرنا جائز ہے, اور آپ نے آن لائن کہا, میں نے جواباً کہہ دیا کہ تو بس صاحبہ کا کروا دیں یا دوسری کا کروا دے, تو آپ نے مجھے حرام زادہ کہا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, آپ نے اپنے آپ کو پہلے حرام زادہ کہا. یہ بات ہے جی. کریں تم پھر شروع کرنا چاہتے ہو, باز آ جایا کرو. نہیں تو آپ بھی نیچے سے آئے, طارق صاحب کر رہے ہیں تو آپ ان سے بات کریں. بیچ میں جو ہے بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب طارق چوہان بک بک کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں منع کر رہا, کوئی نہیں پٹا ڈال رہا, سب آرام سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں.
खामोशी से सबके खून बढ़ रहे हैं जी, क्या बात है। वो हमारे खुलफा के मुतल्लक बकवास कर रहा है, बकबक कर रहा है, ठीक है। और जब मैंने उसे चेक करने के लिए उसको लगाम दी है तो बिलाल भी बीच में आ गया, उसकी भी बहन की गैरत जाग गई है और बाकी सारे भी आ गए, छातमियत होने लगी है। देखो तो तुम आप लोग सुने अपनी बहन की करो ना। बात बड़ी सादा और सिंपल सी है कि बात को वहां तक ही रखो जहां तक है ना। अगर तो तारक चौहान कर रहा था तो तारक चौहान ठहरो ठहरो, बात सुनो, मैंने बात खत्म नहीं की, आराम से, खत्म होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फिर ये काम शुरू हो जाएगा। अपनी बहन को अपने घर बैठा के रखो ना, किसी दूसरी की बहन के ऊपर आने की तुम्हें क्या जरूरत है? जब तुम्हें इस बात का बड़ा पता है कि तुम्हारे अच्छा, चुप कर, चुप लड़कियों के बराबर है ही नहीं है, तो तुम क्यों दो हाथ वो लेने दें इनको, आज ना उतारें, ये वाली नहीं है। इस इंसान के अंदर अकल नहीं है, जाहिल है, पैदल है, वो कहता है मैं टीचर हूँ। इसके माँ बाप ने पता नहीं इसकी तरबियत कैसे की है, किसी जाहिल इंसान का बच्चा है ये। किसी की बहन बेटियों का तो नहीं हुसैनी साहब, जी इसको मैं जवाब दूं कि मैं किसी जाहिल का बच्चा हूँ। की जरूरत नहीं है। तुमने अगर इल्मी बात करनी है तो इल्मी बात तक बात रखो, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखो। ये कह देना बिलाल हनीफ अपनी बहन को बैठा रही, इसका क्या मतलब है भाई? ये लें जी, ये है आपके, ये अभी जानता नहीं है मेरी जुबान को। अगर मैं शुरू हुआ, हमें पता है, फिर बात वहीं के वहीं जाएगी भाई। अगर तो तुम्हारे माँ बाप ने तरबियत अच्छी की है तो तुम्हारी लैंग्वेज दुरुस्त ही रहेगी। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत खराब की है तो तुम्हारी लैंग्वेज खराब ही रहेगी। आगे भी कई दफा बयान कर चुके हैं कि बहनें सबकी साझी होती हैं, किसी की भी क्यों ना हो। आप लोगों में या तो आप लोगों के अंदर बचपन से जहर इतना ज्यादा घोल दिया गया हुआ है कि आपको तमीज तक नहीं रही कि किसी की बहन बेटी की इज्जत कैसे करते हैं। या तो आप बाहर आपके भूल चुके हैं अपने कल्चर के ऊपर कि हमारा कल्चर या हमारा दीन जो सा है वो क्या तालीम देता है। आप उस वक्त के बार बार लगे हुए, आपको बताया गया है भाई कि अगर किसी से सवाल किया जाता है कि बहनों की इज्जत साझी होती है तो अगला कहता है नहीं भाई बहनों की इज्जत साझी नहीं होती। जब उसकी बहन के ऊपर बात आती है तो चिल्लाना क्यों शुरू कर देता है भाई वो आगे से। राजा ताल मनान साहब से जब सवाल किया गया कि भाई ये बात हुई है तो उन्होंने कहा गाली नहीं है, लेकिन जब बिलाल हनीफ ने वही अल्फाज उनके ऊपर किए तो उनको फौरन गुस्सा आ गया। उस वक्त क्या हुआ था भाई? भाई जो म्यार हम किसी की बहन बेटी के लिए रखते हैं सेम इसी तरह का म्यार हमें अपनी बहन बेटी के लिए भी रखना चाहिए। इस वजह बोम्बास्टिक साहब बात सादा और सिंपल सी है, बात करें लेकिन अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखें। सिर्फ सादा और सिंपल सी बात है। आपके हुल्फा के खिलाफ अगर तारक चौहान साहब बात करते हैं तो भाई आप उनके हुल्फा के खिलाफ कर लें या उनके जंबा साहब के खिलाफ कर लें। आपको आज़ा आप सल्लम के खिलाफ बात करने की क्या जरूरत है? आपने अपने हुल्फा को नबियों के बराबर समझा हुआ है, आप फौरन ही नबियों के ऊपर जाकर बात करना शुरू कर दे। भाई आपने करनी है, करें जंबा साहब के खिलाफ बात। अब हम लोगों को क्यों दरमियान में लेके आते हैं भाई? आप लोगों की घर की लड़ाई है, आप मोहल्ले में दूसरे घर जाके तमाशा करना शुरू कर देते हैं भाई। आप ही का ग्रुप है भाई, जमात अहमद इस्लाह पसंद नाम है उनका। आपस में करें भाई लड़ाई झगड़े, हमें क्यों दरमियान में लेके आते हैं भाई? हमारे नबियों को क्यों दरमियान में लेके आते हैं भाई? आपका दीन अलग, आपके हुल्फा अलग, आपके लोगों के नबी अलग। आप लोगों का हमसे क्या ताल्लुक है भाई? उसके बाद कई दफा आपको समझा चुका, पिछली दफा भी आपको समझाया। सिर्फ आपकी जितनी देर एक हफ्ते तक, एक वीक तक आप हुसैनी साहब की ब्रॉड के ऊपर नहीं थे, यकीन करें मैं आज भी कसम उठा के आता हूं ब्रॉड बड़े अच्छे तरीके से साथ चली है, ठीक है ना। बहुत कम लड़ाई हुए हैं, झगड़े इख्तलाफात हुए हैं, लेकिन इस तरह की गाली बाज नहीं हुई। जबकि 2 दिन हुए आपको इस ब्रॉड के ऊपर दोबारा आए हुए, वही गाली गलोच, वही मिर्जा साहब को गालियां सेम स्टार्ट हो गई हैं। यकीन करें मिर्जा साहब को गालियां पढ़वाने वाले आप खुद हैं। आप आ जाते हैं, आते सारी आप ना कोई राइट देखते हैं ना लेफ्ट देखते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं आप। तारक चौहान साहब की बात को आप कहीं का कहीं लेके चले जाते हैं भाई। भाई हमें बख्शो भाई, हमें बख्शो भाई। आपका दीन अलग, आपका मजहब अलग भाई, सब कुछ आप लोगों का अलग भाई। हमें बख्श दो भाई, हमारे नबियों को और हमारे उल्फा को भाई बख्श दो। गुजारिश है आप लोगों से, ये गाली गलोच भाई अपने घर की हद तक रखो, हमारे तक ना लेके आओ। कंटिन्यू रख, मैं सुन रहा हूँ। कंटिन्यू रख आगे। हमारे नबी हाय, हमें लहदा। अच्छा ये बताओ, सफिया जो है वो तुम्हारी है?
और भाई मैं कई दफा अम्मा जी को सफिया के मुंह के ऊपर कह चुका हूँ, क्या? यही बात है, आदि सुनते हो भाई, कई दफा कह चुका हूँ अम्मा जी, आप इस जमात का हिस्सा हैं तो आपको इस जमात के ऊपर बात करने का कोई हक नहीं है। पहले जमात को अलविदा कहें, पहले जमात को छोड़ें, उसके बाद जो कुछ बोलना है भाई बोले। नहीं नहीं, ये बताओ, बात है, आदि से ज्यादा बात, पहले पूरी बात सुन लिया करो ना, अच्छा ताकि अकल के अंदर कोई बात पड़े। मुझे समझ नहीं आती टीचर बना तुमको किसने है भाई, पता नहीं कनाडा के अंदर किस जगह पर जाके टीचिंग करते रहे हो यार, अजीब सी लॉजिक पेश करते हो आके, सारी की सारी जमात को तुमने यहाँ पे बदनाम करके रखा हुआ है, ऐसी ऐसी बातें करते हो, नीचे से लोग आते हैं मिर्जा साहब को गालियां दे के जाते हो, ऊपर तुम बैठ के दांत निकाल रहे होते हो। ठीक है ना, गैरत वाला बंदा जो होता है ना वो मर जाता है उसी वक्त ही। कैसे होता है? तू मर गया? ठीक है ना, लेकिन कैसे होता है? तू मर गया? ठीक है ना, लेकिन आपके अंदर वो गैरत रही हो कनाडा आके, तो फिर है ना, तू मर गया? हिजड़े आके रख दिया हुआ आपको यहाँ की कम्युनिटी ने। तू मर गया गैरतमंद? से तुम्हें बोम्बास्टिक बार बार ये बात कहते हैं, भाई शर्म कर लिया कर, कुछ हया कर लिया कर। अच्छा जी। एज में काफी बड़ा होगा भाई तुम, अच्छा जी। लेकिन सारी की सारी अकल घुटनों के अंदर ही है। अच्छा जी। ठीक है, तुम्हारी औलाद शायद हो सकता है मेरी एज की हो। अच्छा जी। अब हमें समझाना पड़ रहा है तुम्हें कि भाई जिस एज में तुम है, प्यार मोहब्बत अगर तुम्हें इतना ही मिर्जा साहब के साथ है तो वो हरकत ना किया कर ऊपर आके। अच्छा जी। तो मिर्जा साहब को गालियां पड़े। अच्छा जी। लेकिन तुमने फिर अच्छा जी। लेकिन तुमने फिर वही हरकत करनी, और तुम्हारे हुल्फा के अलावा बात हो रही है भाई, अगर इतनी हिम्मत है तो दे जवाब तारक चौहान को उसके हुल्फा के बारे में, ठीक है ना, उसके जम्बा के बारे में। लेकिन बात तो ये है, तुम्हें नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हें तो उस वक्त फौरन उसी वक्त ही याद आ जाती है हम मुसलमानों की। भाई बख्श दे भाई, हमें नहीं जरूरत आप लोगों की इन गालियों की, इन चीजों की। आप लोगों का दीन अलग, आप लोगों के हुल्फा अलग, आप लोगों के नबी अलग, आप लोगों की औरतें अलग, भाई सब कुछ आप लोगों का अलग है भाई। हमसे दूर रखो अपनी औरतों को हमारी औरतों से, दूर रखो अपने नबियों को हमारे नबियों से। तो बिलाल भड़वे को समझा ना, बिलाल भड़वे को समझा इन चीजों से, बिलाल भड़वे को समझा। अपना दीन पकड़ो, हमारी तरफ से लंदन लेके जाओ, हमारी तरफ से कनाडा लेके जाओ, हमारी तरफ से अफ्रीका लेके जाओ, अच्छा, हमारी तरफ से कादियान लेके जाओ। अच्छा जी। अपना जो दीन है भाई वो हमारे दीन से अलग रखो बस। छोटी सी गुजारिश है भाई आप लोगों से। अच्छा, अपने खुदा को कह दो कि हमें पैदा ना किया करे, अल्लाह मियां। कोशिश तो ये है कि अल्लाह करके इस तरह की कौम अल्लाह मियां ने अगर भेजी है तो हो सकता है ये हमारे ऊपर आजमाइश है, हम इसको आजमाइश की तरह ले रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, कि इस तरह की उम्मत जो हमारे ऊपर अल्लाह मियां की तरफ से आया, हो सकता है कोई हमारी आजमाइश अल्लाह मियां में आजमा है, ठीक है ना। हाँ जी, अल्लाह में बड़ा जालिम है तुम्हारा करने के लिए, अल्लाह के फजलो करम के साथ अल्लाह ने हमें ताकत दी हुई है बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी बार आप लोगों से कहते हैं कि भाई ये शातमी है, तो ये अल्फाज जितने भी हैं भाई अपने घर रखो भाई, अपना दीन अलग करो, जाओ भाई यहाँ से अलहदा। पाकिस्तान से प्रॉब्लम है भाई, निकल जाओ, किसने कहा वहां निकल जाओ, किसने चांद पे जिसको जहां से प्रॉब्लम है भाई निकल जाए, हम चांद पे चले जाएं कि मरीज पे चले जाएं, चले जाओ भाई, हमारी तरफ चले जाएं, मामा जी के राकेट पे हम चांद के शहर को जाएंगे भाई, हमें कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। प्रॉब्लम है भाई वहां से निकल जाए, सुभान अल्लाह, ठीक है, माशाअल्लाह। बातें करना है कि हमने ये कर दिया, हमारे न तुम हमको सदमे देते न यूं रुसवाइयां होती, सुभान अल्लाह। सिर्फ यही हरकतें हैं तुम्हारी जिनकी वजह से फिर मिर्जा साहब को नीचे से गालियां स्टार्ट हो जाती हैं, सिर्फ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। बस तुम्हारे नबी की तालीम ही यही है, ठीक है ना, सिर्फ तुम्हारे भाई तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से, बस तुम्हारे नबी की तालीम ही है ना गालियां निकालना, तो निकालो, फिर नीचे से वही काम स्टार्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, करो यार, सिर्फ तुम्हारा ऊपर बैठ के एक ही काम होना है, दांत निकालना है, फिर नीचे हर कोई अपने नबी के सुन्नत में चलता है ना जी, ऊपर आना है और कहना है बोम्बास्टिक साहब ने बिल्कुल ठीक किया है, फिर अदरीस साहब ने आना है। देखो जी, हर कोई अपने अपने नबी की सुन्नत में चलता है ना जीशान साहब, नहीं है नबी अपना अपना। हुसैनी साहब यही कहते हैं कि नबी अपना अपना, आप अपने नबी की सुन्नत पे चलो तो ठीक है, चलते जाओ जी, अपने नबी को अलग रखो जी, अपनी जमीन अलग रखो जी, अपना चांद अलग रखो, अपना अल्लाह मियां अलग रखो, अपना सूरज अलग रखो, वो सिर्फ सूरज तुम्हारे ऊपर ही सिर्फ रोशनी करे, अपने डड्डू अलग रखो, अलग बैठो,
अपनी गंदम ले ले जमीन पे उगाओ। छोड़ो भाई, अपने नबी पकड़ो, अपने उल्फा पकड़ो और भाई चले जाओ यहाँ से। तो तुम अपने नबी पकड़ो तो कहीं और चले जाओ, उनको छुपा कर रखो, उनके ऊपर कपड़ा डाल दो। तुम भी अपने नबी छुपा के रखो, उनपे कपड़ा डाल दो, उनको पकड़ो और ले जाओ। जमीन को भी तुम भी ले जाओ उनको। पाकिस्तान की जमीन तो कम अज कम तो मशवरा हमें देते हो, वो तुम अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करते? तो सूखा सांस लेना तो पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जमीन पे चले जाओ वापस, की वजह से पाकिस्तान की जमीन पे वापस चले जाओ। की वजह से हम इस वक्त दुनिया के अंदर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे हद दरुआ। हाल करके रखा हुआ आप लोगों ने। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਮੂਣੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰੀ मुसलमानों ने। ड्रामे बात कहीं का। हाय अल्लाह, हमें मरीख पे भिजवा दो, हमारे अपने रब को हमें ना पैदा किया करे, हमारा अल्लाह अलहदा कर दे, कह दो। हेलो जी हुसैनी साहब। जी जी, मेरा ख्याल है काफी अच्छी गुफ्तगू हुई है ते बड़े दलाइल दे नाल। बहुत ही अच्छी। मैं कहना ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੀ लाल भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हुसैनी साहब ये बताएं कि आपने बिलाल साहब का खून बढ़ाया है कि ये नेगेटिव बात बहुत अच्छी करते हैं, तो मेरी भी कुछ तारीफ करें। मेरा मतलब क्या कहते हैं आप? आपके मतलब यही है कि आप नहीं करते, गाली नहीं निकालते, कोई वजह होती है जिसकी वजह से आप प्रवोक होते हैं। बस हर एक वाह जी वाह, मेरा 40 किलो खून तुसी बता देता हूं, मैं खून डोनेट करन चला। हाँ, बात ये है कि कोई कार खुद बहुत स्टार्ट होकर चलना नहीं शुरू कर देती, इग्निशन लगाते हैं तो फिर आती है ना। हाँ देखो ना, यही न्यूटन का है ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी, until and unless you apply the force, acceleration is not created। तो ये बहुत F is equal to m में ये बहुत बड़ा झूठ है कि कोई आदमी कहे कि फला आदमी गालियां देता है। गलत झूठ, तो कोई गालियां नहीं देता। वाह, गालियां देने की वजह होती है कोई आदमी इग्नाइट करता है, वो भाग जाता है वहां से, उसका नाम गुम हो जाता है। एग्जैक्टली। और उसके बाद एक आदमी पे इल्जाम लगा दिया जाता है गालियां पागल देता है। कोई गालियां कोई पागल नहीं है जो गालियां ऑल ऑफ सडन, जैसे आप अभी बैठे हुए हैं, आप गालियां नहीं दे रहे। मुझे दिमाग खराब है, मैं क्यों दूंगा? मेरी मतवजी ये भी बैठे हुए हैं बिलाल भाई, ये भी गालियां नहीं दे रहे। गालियों की वजह होगी कि जब आपके दरमियान पहले इख्तलाफ होगा, फिर इख्तलाफ बढ़ेगा, फिर गर्म गर्म बातें होंगी, फिर मुश्तिल होंगे, फिर एक वक्त पे आके कुछ जब्त नहीं रहेगा, सख्त लफ्ज निकलेगा, फिर उसके बाद वो गाली में तब्दील होगा, फिर उससे बड़ी गाली में, फिर उससे बड़ी गाली की तरफ जाएगा। ये कहना है कि इस ब्राड पे एलर्जी है, यहाँ आते ही मतलब किसी आदमी के खारिज पैरों में होने लगती है या सर में और वो गालियां निकाल, ये ठीक है बात? ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, ब्राड का बिल्कुल कसूर नहीं होता। ब्राडे तो सारी मेरा ख्याल है और ना होस्ट का कसूर होता है। हाँ, ना मैंने लेकिन एक बात जरूर है जो कि मेरे नोटिस में है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है कि अगर इस वक्त इस टाइम के ऊपर जबकि लड़ाई हो रही है तो अली हक अगर ऊपर आ जाए तो वो फ्यूल करेगा। हाँ जी, तो होस्ट को अपनी जजमेंट यूज करनी चाहिए कि नहीं, कि ये मजीद ऑलरेडी हालात खराब है तो किसी ऐसे बंदे को ना उठाएं। तो मैं यही तो करता हूँ अमूमन। नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया, आज मैं जानता हूँ। दूसरी बात यह है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर जजमेंट के वाकई जो गाली गलोच है या आवाज का ऊंची करना होता है वो बगैर वजह से नहीं होता। बिल्कुल उसमें कोई, लेकिन मेरे नोटिस में होता है कि बाज लोग मीसने होते हैं, वो इसी ताक में बैठे होते हैं कि कुछ ना कुछ हो,
या क्योंकि वेले हैं और फारग हैं और उनके दिल के अंदर रिजेंटमेंट होती है। हाँ। अभी ये बंदा जो आया था जीशान, या क्या पिद्दी का शोर बना बगैर वजह से ही पता नहीं की कह के चला गया, मैं सुने ही कोई नहीं। हाँ। ओए भी अपने नबी अलहदा कर लो, खुदा के लिए खलीफे भी अलहदा कर लो, अपनी जमीन अलहदा कर लो, इस दुनिया से निकल जाओ, हमारा अपना मजहब अलहदा कर लो, अपनी गंदम की बजाय तुम कुछ और चीज खाया करो, तुम अपना ये किया है कोई गल, और कह रहा है कि मैं पागल हूं। हाँ, बंदा पूछे अल्लाह ते बंदे, इसके नानी दादी परदादी ये पता नहीं सहाबियों की औलाद होगा है, तो ऑल ऑफ सडन ये मुसलमान हमें छोड़ दो, हमारे मजहब। वो तो अब जो कि चले गए, जब वो थे तो दलाइल पे दलाइल दे रहे थे और उनके मेरे पास दलाइल ही कोई नहीं थे, मैं जिच हो गया था, मेरे पास आवाज ही कोई नहीं थी। आपको उन्होंने मुंह बंद करा, आप तो बिल्कुल हाँ मुंह बंद था मेरा, बिल्कुल ये मैं मानता हूँ। वो दलाइल पे दलाइल देते चले जा रहे थे। जी बिल्कुल। जब दलाइल बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर आदमी आजिज़ के खामोशी हो जाता है ना। हाँ तो उनके दलाइल जो थे बड़े पावरफुल थे। हाँ तो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं अभी क्या ये करूं। सारी बातें मुझे देखनी पड़ती हैं, और इन सारी बातों के बाद राणा साहब आके कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से है। नहीं कोई किसी की वजह से, अपनी पर्सनल चॉइस है, अगर मैं ना आना चाहूँ तो आपको क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि मुझे लाजमी आप उठाएं जी। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ। उनके लिए ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम इस तरह के लगाने के नहीं जी हम तो छोटे बच्चे हैं, हम नाक से रोटी खाते हैं मुंह की बजाय, तो दैट इज अ नॉनसेंस। अभी मैं अगर आया हूं तो मैंने तारक चौहान से पंगा लिया, तो मैंने बकायमी होशो हवास से लिया और खुद लिया है और जान के लिया, क्योंकि उसने बाज नहीं आना था, उसने चुप नहीं करना था। तो ये इस तरह की बिल्कुल सही जगह पे हम पहुंचे हैं, उसकी वजह हमने मालूम कर ली है कि ऐसे ही ये नहीं हुआ कि आप यहाँ आए हो, पुरअमन माहौल हो, बड़ी अच्छी बातें हो रही हो और आपने अचानक आके गालियां शुरू कर दी हो। नहीं कभी नहीं को कर सकते, ऐसे ना आप करते हैं ना आज आपने किया है। वजह थी उसकी, वो एक से दूसरे के साथ गुड़ लगाया, मक्खी आई, कुत्ता आया, दूसरा कुत्ता आया, वो लड़ पड़े, फिर वो जिनके कुत्ते थे वो आ गए, वो डांगो डांगी हो गए, फिर उनकी मदद के लिए कुछ बंदे आ गए, फिर माओ बहनों की गैरत जाग जाती है ना फौरन, ये बड़ा मसला है। वो जो जमाना जाहिलियत की बातें हैं ना, जिसके मुतल्लिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कभी घोड़ा आगे, अल्ताफ हुसैन हाली मुसद्दस हाली में कहते हैं ना, वो फरमाते हैं कि कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। तो वो उसमें वो जंगे फसूस गालबन है, जिसमें किसी आने वाले ने कहा कि पहले पानी घाट पे मैं पिलाऊंगा, तुम ना पिलाओ, अगर तुमने पिलाया तो मैं मार दूंगा। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, पहले मैं पिलाऊंगा। उसने पिलाया, उसने तीर मारा, वो बंदा मारा गया। उन्होंने बदला लेने के लिए उनके 2 आदमी मार दिए, उन्होंने बदला लेने के लिए उनके 5 मार दिए, और कई सालों तक वो चलता रहा, 70 साल तक चलती रही गालियां देने की बात। और मालूम करने वाले मालूम किया कि इस जंग की बुनियाद, जिसमें 1000 बंदे कत्ल हुए, वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने पानी पहले पिलाना। अच्छा सनी साहब, ये नीचे से एक सवाल आया है जी जी। सफिया बहन का, कहते हैं कि इनको पूछें कि मेरा जिक्र क्यों लेते हैं, बदला लेने के लिए? नहीं कोई उनका जिक्र गलती से निकल गया है, उनसे माफी मांग लेते हैं हम, तो ना चाहिए। वो हमारी बहुत मोहतरम है, मुअज़्ज़ज़ हैं और बुजुर्ग हैं, बड़ी मर्तबे वाली हैं, तो हम उनसे माफी चाहते हैं। जबरदस्त, थैंक यू। इसलिए वो ठीक होगी बात। तो बाद दफा ऐसे ही जज्बात में कोई बातें निकल जाती हैं मुंह से, तो हमेशा उस तो को वजह ही नहीं बना रखना चाहिए। तो ये है कैफियत। मैंने बड़ा गौर किया जब दोस्त मुझे कहते हैं, कुछ लोग एक लंबा अरसा तबर्रा करते रहे कि गोया मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकलवाने के लिए प्रोग्राम बनाता हूँ, लोगों को कहता हूँ आई, ऐसे हो सकता है? अस्तगफुर। वो अदरीस साहब ने बात ठीक की है कि चाहे अहमदी हो चाहे गैर अहमदी हो, कोई सोच भी नहीं सकता हाँ कि कभी ऐसा करे, कोई नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर होती है कि ऐसा हो और हम उसको उछालें,
और वो तैयार होते हैं 24/7 के कोई ऐसी बात हो और हम उसको वो टर्न दे दें। हाँ बिल्कुल। इनकी और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ऐसी कोई बात अगर हो जाए और उसके बाद देखे देखो, और ये लोग हैं फसादी कि जिनका कुरान में जिक्र है कि हम तो अमन कायम करना चाहते हैं। अल फितना तो अशद मिनल कत्ल, फितना जो है वो कत्ल से भी ज्यादा बुरा है। ऐसी मूजबात को तलाश करना या पैदा करना जिससे कुछ प्रवोक हो के लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और माहौल एक कशीदगी इख्तियार कर जाए, तो उसके लिए बार बार सबको उतारना पड़ता है। बार दफा किसी को रोकना नहीं, वो बहुत अच्छा करते हैं, वो गुजारा ही नहीं हो सकता उसके बगैर। अच्छी खासी मेरे ऊपर इब्तला बना हुआ होता है, और उसके बाद जो नासिर तशरीफ लाते हैं तो वो कहते हैं ये सब ये करे और वो करे, तुम्हारी बुराद की वजह से है, ये तुम्हारी वजह से है, तुम हमारे आदमियों का ख्याल नहीं रखते, तुम उनको तो रोकते हो, तुम इनको नहीं रोकते। मैं अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं दोनों फरीकों के दरमियान इंसाफ को कायम करने की कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से दोनों के दरमियान बराबरी रहे और लड़े ना, ये ख्वाहिश होती है। बैलेंस रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। नो, बिल्कुल मुश्किल, किसी भी तरीके से ये आसान काम है ही नहीं। बिलाल नहीं साहब, आप ये बताएं कि आप क्यों इतने लो लेवल पे आ जाते हैं अचानक ही एक अच्छी भली गुफ्तगू करते करते, और आपको भी मेरे मिजाज का पता है। आप मुझे क्या समझते हैं? चले मुझे बताएं, मेरे मुतालिक एवैल्यूएशन दे, फ्री एंड फ्रैंक ओपिनियन। मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं आपकी नहीं, मैं बिलाल हनीफ की बात करूं। मेरे मुतालिक बताओ बिलाल हनीफ आपका क्या ओपिनियन है? बात इतनी सी है जी, मुझे नहीं पता किसी इंसान के अंदर का क्या है। बात तो हो रही थी तारिक चौहान साहब की, और आप क्योंकि सफिया बहन को बीच में लेके आए हैं तो मुझे इस पे गुस्सा आया कि एक औरत हमारे घर में माए बहनें हैं, ठीक है, जब एक किसी बात का जिक्र ही नहीं हुआ, मौजूद ही नहीं है, उनका कमेंट ही कोई नहीं है, नीचे भी उन्होंने कोई तारिक चौहान साहब से आपका मसला है, आप तारिक चौहान से बात करें। असल में मुझे पता है कि तारिक चौहान को ज्यादा अगर आप हीट अप करेंगे तो वो सीधा जाएगा मिर्जा साहब पे, जैसे आपके सच बताना, आज उनको हीट अप किया था, ये उन्होंने पहल की थी। राणा साहब वो खुद मुझे छेड़ रहे थे, मैं खामोशी से उनको अवॉइड कर रहा था। यार साहब ठीक है, मैं बंद करूंगा इनको। हाँ जी, बता दें बिलाल भाई, बस इस सवाल का जवाब दे दें प्लीज। राणा साहब आपको नहीं, आपसे कंट्रोल नहीं होता, आपका कंट्रोल नहीं आपने साहब वो कर रहे हैं मुबास्तर साहब से, उसमें कर लें, हम खामोशी से उन दोनों को करने दें और हम खामोशी से सुन लेते हैं। राजा साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं। राजा साहब, बात ये है बिलाल हनीफ साहब, खुदा खौफी होने के तहत अगर आप में माँ बहनों की इतनी गैरत है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटेबल बात है। और मैंने गलती की थी, आप बोले, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर इस तरह के लोग हों तो सोसाइटी बेहतर पे लगती है कि एक गलती करो और उसे 3 रोकने वाले हों, ऐसा होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग। ये अगर एक सोसाइटी में पैदा हो जाए ना चीज, तो वो जो सोसाइटी होती है वो जन्नत बन जाती है। और ये उसके बाद भी ऊपर आके आपने मुझे कुछ बोला है, मैंने उसका रिप्लाई आपको नहीं दिया क्योंकि वो मेरी जात की बात थी। मैंने मुकम्मल बात नहीं अभी की, ठीक है। अभी बात ये है कि सिर्फ इसके ऊपर गैरत दिखाने वाली बात नहीं होती। चाहे चौहान साहब हो, मैं हूं, आपके इलामा साहब हों, कोई भी बंदा हो, जब आप देखें कि गुफ्तगू जो है वो फसाद की तरफ जा रही है और गंदगी की तरफ जा रही है, तो एज ए खुदा खौफ होने की होते हुए और गैरतमंद इंसान होते हुए इस हर बंदे का ये फर्ज है कि उसको रोके। मेरा भी फर्ज है कि मैं रोकूं। जब ये बात आप में आ जाएगी ना, जब तारिक चौहान ये कर रहा था तो फिर मजे लेके बैठना नहीं चाहिए था आपको। आपको चाहिए था कि तारिक चौहान साहब
आप गलत बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, हम भी इधर बैठे हुए हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट खराब होगा, पीस खराब होगा, लोगों के आपस में रिलेशनशिप खराब होंगे, बातें कहीं की कहीं जाएंगी, बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, लपेटे जाएंगे। मेहरबानी बात जो है वो ठीक तरीके से अगर नहीं कर सकते, देन यू शुड म्यूट योर कन्वर्सेशन। या ये होना चाहिए कि जितने भी गैरतमंद है, हक के तालिब लोग हैं, वो देखें कि हम एग्जिट कर देते हैं ताकि ऐसे बंदे को डिस्करेजमेंट मिले। लेकिन अगर ये हो कि जी मिर्जा साहब जो हैं उनको तो हम नबी मानते ही नहीं है, वो झूठे हैं, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, तो उनके साथ जो मर्जी होना थे कोई बात ही नहीं है, खैर है। तो जो आग आप किसी के लिए लगाते हैं ना मेरे भाई, वो आपके दरवाजे पे लाजमी पहुंचती है। ये मत सोचें कि आग आप लगाएं और उसकी हीट जो है, आप भी उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपका उसके ऊपर इफेक्ट ना हो, ये कभी नहीं हो सकती। तो खुदा खौफी का तरीका ये बात ये है कि जैसे आपने मुझे रोका, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बट नेक्स्ट टाइम वी शुड स्टॉप एनीबॉडी कि जो गलत रास्ते पे जाता हो, गाली गलोच की तरफ जाता हो, अकाबरीन की तौहीन करने की तरफ कन्वर्सेशन लेके जाता हो, उसको फौरन शट अप कॉल दे सारे मिलके। इफ ही इज नॉट स्टॉपिंग, एवरीबॉडी शुड एग्जिट। फिर हम मानेंगे कि खुदा खौफ लोग हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक फाजला पे चलने वाले हैं, इनके दिल साफ हैं, वाकई ही ये दीन सिखाना चाहते हैं और लोगों की भलाई करना चाहते हैं। अदरवाइज ये फिर बांदर किला है, ये एक शैतानी चरखा है, फसाद फैलाने वाले हैं हम सब लोग, हम मजा देखने वाले तमाशबीन हैं, कोई भी नहीं इससे इज्जत से फिर बचेगा। अच्छा चले, बात मौका दें, बात ही है सर कि बात तो हो रही है तारिक चौहान साहब की और राना राशिद साहब की, और नीचे भी शायद खादम साहब भी साहब बैठे थे। मेरा या आमिर नजीर का तो इस बात से लेना देना नहीं है। वजह ये है कि जो तारिक चौहान है वो हमें काफिर समझता है, दायरा इस्लाम से खारिज समझता है और फासिक समझता है, जैसे वो आपको समझता है। बल्कि आपके साथ तो उसकी फिर भी इस लिहाज से कुर्बत है कि आप उनको अपना इख्तलाफी भाई समझते हैं, वो नहीं समझते लेकिन आप समझते हैं, और आप दोनों एक ही पर्सनैलिटी को मानने वाले हैं। कि हमारे फरोई इख्तलाफात हैं, किसने कहा? जी 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 अलीम साहब, एमजी साहब, बल्कि उस दिन आप भी इनको दावत दे रहे थे। नहीं तो मैंने चले वो उसको छोड़ देते, वो आप उनसे पूछ लीजिएगा। एक बात भाईजान, बात ये है कि बात लंबी हो जाएगी ना, बात लंबी हो जाएगी, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं माजरत कर लूंगा, लेकिन आप उनसे पूछ लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि ये असूल कहीं का भी नहीं है कि लड़ाई हो रही हो रशिया और यूक्रेन की, और बीच में जनाब वो थाईलैंड को ले आए, बीच में वो अमेरिका को ले, सॉरी इसको जापान को ले। क्यों भाई? आपकी बात हो रही है, वो कर रहे हैं आपके बारे में, आप उनके बारे में कर रहे हैं, बीच में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जिक्र करना, या बीच में किसी औरत का जिक्र करना, किसी खवातीन का जिक्र करना, मेरा नहीं ख्याल कि दुरुस्त है। जो जिसकी रिस्पेक्ट करता है ना, जो जिसको नबी मानता है, वो उसके बारे में बात कर ही नहीं सकता। मेरा तो उसूल, मैं तो ये समझता हूँ, उसको तो उसकी बात करने पे मिर्चे लग जाएंगे, तकलीफ होगी, तो वो कैसे कर सकता है? इल्जामी जवाब देना ये ठीक है कि आप यहाँ, ये ठीक है कि इसकी गुंजाइश है, लेकिन अगर आप अपनी लड़ाई में रसूलुल्लाह को लेकर आएंगे या आप किसी औरत को लेकर आएंगे, तो सर मैं बोलूंगा, अब मुझे कह लेंगे कुछ, आप बोलेंगे आपने ऊपर आकर मुझे बोला है, मैंने आपको जवाब नहीं दिया उसका। Until unless आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं करेंगे, हम आपको नहीं कहेंगे। अहमद नजीर साहब को इधर लोगों ने गालियां दी हैं, मुझे भी दी, मैंने कभी किसी को माँ बहन की गाली नहीं दी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आप कहते हैं ना कि चूंकि आपके वो अकाबरीन है तो हम भी उनकी इज्जत के तौर पे किसी को कहें, सर हमारे अकाबरीन नहीं है, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन चूंकि आपसे डायलॉग करना होता है तो हम उनको मिर्जा साहब कहते हैं। अदरवाइज हमारा उनके बारे में वही अकीदा है जो आप लोगों का
مسلمہ کذاب کے بارے میں عقیدہ ہے اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی دوسرے شخص کو اس کے دعویٰ پر سچا نہیں سمجھتے ہیں, لیکن آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ طارق چوہان اور اس کی لڑائی ہو رہی ہے رانا راشد کی, تو ہم بیچ میں جائے تاکہ وہ ہم کو بھی شروع ہو جائے, آپ کی بات وہ ہم کو بھی شروع ہو جائے. آپ کی بات کی سمجھ آ طارق رہی چوہان کسی کے ہے. روکنے سے نہیں رک سکتا. ٹھیک ہے, بات کی سمجھ آ گئی ہے. ابھی حسینی صاحب آپ ایک سن رہے ہیں, آپ نیوٹرل بات. اچھا جی, انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ کے فروئی اختلافات ہیں, ہم کیوں دوسرے کی لڑائی میں بیچ میں آئیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بتائیں کہ صفیہ بی بی بھی تو پھر ہماری ہے, وہاں پہ آپ کی غیرت کیوں جاگ گئی ہے پھر؟ اگر یہ فروئی اختلافات ہیں اور ہمارے آپس کے معاملے ہیں تو صفیہ بی بی تو ہماری اپنی بہن ہے, پھر اس کو ہم جو مرضی کے, پھر ادھر آپ کی کیوں غیرت جاگنی چاہیے میرے بھائی؟ میں دیتا ہوں جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے آپ کی اور طارق چوہان کی, جس کی بھی جو ہو رہی ہو. سن لے میں سن رہا ہوں. ان کو آپ کی خلافت پہ یا وہ جو بھی کر رہے تھے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا, سیدھی سی بات ہے. میں کسی کو اس طرح مخاطب کرنا کسی کے بارے میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا, لیکن وہ دو مردوں کی بات تھی. اس میں تیسری عورت کو لے کے, عورتیں ہوتی ہیں, ہاں جی مواسق صاحب آپ کی ماں بہن بھی میری ماں بہن ہے. نہیں, بات سنو, سن لو. نہیں, ادھر میں غلط کہہ رہے ہیں نا آپ کی مائیں بہنیں اور ہماری مائیں بہنیں سانجھی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہم تو ہیں آپ کے مطابق غلط گمراہ لوگ ہیں, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اسلام سے خارج ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی, تو ہماری عورتیں بھی آپ کے لیے کافر ہے نا, اور ہمارے لیے آپ کی عورتیں کافر. بالکل. تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ہماری عورتوں کے اتنے بننے والے, غیرت دکھانے والے؟ کیونکہ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. نہیں, یہ آپ کے نبی کی, اچھا تو آپ کے نبی کی یہ بھی تعلیم ہے کہ جہاں پہ غلط بات ہو رہی ہے اسے روکو. نہیں, نبی کی واٹر صاحب ایک منٹ, یہ آپ کے نبی کی تعلیم ہے, یہ بھی نبی کی تعلیم ہے کہ تماشا بیٹھ کے دیکھو اور کہو کہ یہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. تو خیر میرے, کیونکہ جی نہیں سن لو, غلط جگہ پہ نہیں, ایک منٹ بات کرنے دیں. 15 سیکنڈ ابھی آپ نے ایک طرح سے, نہیں میں آپ کو دیتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں اس کو. آپ نے 15 سیکنڈ میں نہیں سمجھانا, میں سمجھا دوں گا, واللہ سمجھا دوں گا. اچھا صبر کر لینا, پھر صبر کر لیں. یہ آپ نے ایک طرح سے نا شاطمیت کی ہے. اگر تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو ان کی ہرگز یہ تعلیم نہیں ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑے ہوں irrespective of their religion. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یا دین ہے, وہ تو سب انسانوں کے لیے ہیں, چاہے ان کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا, ٹھیک ہے. ان کی یہ تعلیم ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہو تو اس کو روکو. وہ یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے درمیان غلط بات ہو رہی ہو تو روکو. کہیں بھی غلط حرکت دیکھو, گالی گلوچ دیکھو, جھگڑا دیکھو, اس کو روکنے کی کوشش کرو, فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ کہیں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ فرمایا کہ صرف مسلمانوں میں فساد ہونے کی ہو رہا ہو تو ان کو جوڑنے کی کوشش کرو, دشمنوں کو اگر ہو رہا ہو تو ان میں اور فساد پھیلاؤ. یہ آپ لوگوں کی تعلیم غلط ہے. یہ بہت بڑی شاطمیت ہے کہ اس پاک ہستی کو جس کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ یہ رحمت للعالمین ہے, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے, محسن انسانیت ہے, محسن مسلمین نہیں کہا, رحمت للمسلمین نہیں کہا, عالمین کا ہے. یہ ہے آپ کی غلطیاں اور دجل کہ جب آپ ہر چیز نبی رحمت کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی موقع دیں. بات یہ ہے انتہائی ناانصافی ہے آپ کی طرف سے. جب میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو غلط, آپ مجھ سے پوچھے کہ آپ کا موقف ہے کہ جو طارق چوہان صاحب باتیں کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے, میں کہوں گا نہیں سر, یہ میری براڈ نہیں ہے. یہ آپ میرے ساتھ رانا راشد بیٹھا ہے, آپ کی جماعت کا بندہ ہے, اس کی موجودگی میں پوچھ لیں, میرا کنٹرول ہے, میں اس کو روک دوں گا. طارق چوہان نے میرے کہے پہ کبھی بھی نہیں رکنا, اس کو 1000 دفعہ بھی کہہ دیں انہوں نے نہیں رکنا. تو میں کیوں بیچ میں آگے خود کو بھی گالیاں پڑھواؤں یا خود کے بارے میں میرا بھلا بات کہوں. کیسے پتا تھا کہ جب میں نے صفیہ بی بی کا نام لیا تو میں رک جاؤں گا, پھر آپ نے مجھے گالیاں کھائی ہیں؟ سن لیں,
हाँ तो आपने निकाली है। आपको किसने कहा कि मैं बड़ा हाजी हूँ, मैं तारिक चौहान से डिफरेंट हूँ? मैं बता देता हूँ। आपका काम था मर्दों की लड़ाई में औरतों को ना लेके आए, ये मर्दानगी नहीं होती। औरत हमारी अपनी है। आपकी नहीं, अखराज कर दिया आपने। अच्छा वो आपकी है? अगर आपकी होती भी तो आपका हक नहीं है। आपकी है? औरतें तो साझी होती हैं। औरतें साझी होती हैं, हाँ, काफिरों की औरतें भी साझी होती हैं भाई, कि उनकी इज्जत है। जिनको इस्लाम में कहा कि लौंडी बना के रखो। हाँ ये बताता हूँ। सुन ले, अब पहली तो बात ये है कि लौंडी के ऊपर आपको क्या इख्तिलाफ है? छोड़ दो इस बात को। अच्छा मेरी बात सुनो, बात सुनो, बात जो सुन ले। अच्छा चल एक और बात बताओ मोहतरम बिलाल हनीफ साहब, कि जब आपके आका मौला आमिर नजीर साहब ने उम्मे रबाब को कहा कि तेरे हम कपड़े उतारेंगे और ये सुन्नत अली है, नाउजुबिल्लाह, आपने क्या किया? आमिर नजीर का उसका साथ छोड़ दिया, उस पर लानत भेज दी और कहा कि आज के बाद मेरे साथ बात मत करना, तू गंदा तरीन आदमी है। तुमने रसूलुल्लाह के मानने वाली एक उम्मती औरत के कपड़े उतारे हैं और उसको एसोसिएट किया है अली बिन अबी तालिब, खलीफा चौहानम, अली मौला। ये कितनी बड़ी शातमियत की उसने, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड। उसमें हम में से कोई इन्वॉल्व नहीं था। उस वक्त आपकी क्यों नहीं गैरत जागी? तो जब इन्वॉल्व नहीं था तो किसी ने इस वजह से मिर्जा साहब को गालियां दी हैं? नहीं, ये बताओ कि आमिर नजीर को किसने सर नहीं उसका उतारा और उसको छोड़ दिया, उससे आइसोलेशन की, उससे बरात का ऐलान किया? ये हम में से नहीं है, हम इसको चांद पे भेजेंगे, मरीख में से भेजेंगे। इसका हमारे मजहब के साथ, हमारे नबी के साथ, हमारे साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ये अपनी बहन को इसने अपनी मुसलमान बहन के कपड़े उतारे। पहली तो बात है मैं घर में हूँ, मैं ऊंची बोल नहीं सकता। दूसरी बात आप मेरी बारी नहीं आने देते। बात यह है कि हमने नहीं कहा कि मेरे बाप साहबा का ताल्लुक मुसलमानों से है या नहीं है। भाई वो मुसलमान हो सकती हैं, हमसे ज्यादा हो सकती हैं। हमारा जहन सुन ले, बिल्कुल मुसलमान हो सकती हैं, हो सकती है कि नहीं है? जमील साहब तो है नहीं है। अभी ये देखे आप सर्टिफिकेट भी बांधते हैं, मुझे नहीं पता भाई, हो सकता है वो मुझसे बेहतर मुसलमान हो। यही आपके मुताबिक हमें नहीं पता। बिलाल मुसलमान है कि नहीं है? हो सकता है। जमील साहब सुन ले। अच्छा ये देखे ना, आप बात ही नहीं आने देते। बात यह है कि मुझसे बेहतर मुसलमान भी हो सकते हैं और हो सकता है मुझे नहीं पता उनका। ये टिकटॉक है, मेरी उनसे कोई एलेक्स नहीं हुई, मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैं उनको जानता नहीं हूँ। इस चेहरे के पीछे आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं भी मैं मुसलमान ना हूँ, मैं कोई एजेंट हूँ किसी यहूदी का, मैं भी आप किसी यहूदी का एजेंट हूँ। तो इसलिए इन चेहरों के पीछे, ये टिकटॉक के पीछे कौन बैठा होता है? क्योंकि जानते हैं उनके मुतल्लिक आपको बिलाल हनीफ साहब को एम्बिगुइटी है। हमने उनको कभी भी गैर मुस्लिम नहीं कहा, इसलिए उनके कपड़े उतारने चाहिए। जमील साहब बारी आलम दो, हमने उनको कभी भी गैर मुस्लिम नहीं कहा। और अपना जो हमारे अलामा साहब हैं उनकी बात उनकी हद तक है, लेकिन जो उनसे मैंने पूछा था वो उन्होंने ये बताया था कि इन्होंने हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ जाकर हम मुसलमानों के बारे में कि ये जो खत्म नबूवत के मुजाहिद है, ये है, ये वो है, ये फलां है, ये धमकान है, ये उन्होंने कहा। हम मुसलमान, तो ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप तारिक चौहान के बारे में कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहते हैं तारिक चौहान? क्या कहता है तारिक चौहान को? कुछ भी नहीं, वो कहते हैं, हम तो कहते हैं कि गाली बाज है, गंदा आदमी है, दैट्स इट। बड़ी बस इतना ही कहते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं? आप कुछ नहीं कहते। और क्या कहते हैं बता दें। किसी भी आप उनको अहमदी नहीं समझते। तो वो अहमदी है ही नहीं, वो अपने आप को अलग करता है। वो कहते ही नहीं ना। आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट। वो अगर अपने आप को अहमदी कहे तो मुझे क्या जरूरत है डिनाई करने की? पूछे क्या है? मैं आपको मानता हूँ। नहीं तो अपने आप को अहमदी कहता है, वो तो कहता है मेरा तल्लुक इस्लाम आपको मानते हैं। मेरे मोहतरम, मैं नबी करीम को मानता हूँ, मुझे मुसलमान आप मानते हो? मैं नबी पाक को मानता हूँ। सबको मानते हैं? मैं मिर्जा साहब को भी मानता हूँ। तो मैं नहीं मानता आपको मुसलमान। तो लेकिन मैं तो अपने मुंह से इकरार कर रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, उसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं है। तारिक चौहान अपने आप को अहमदी नहीं कहता,
लेकिन मैं उसको अहमदी समझूं? क्या बात है यार। शायद आपने तारिक चौहान से कभी ये पूछा ही नहीं है। मैंने पूछा, अहमदी तो वो तो हर कहता कोई मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, कहता मैं मिर्ज़ाई नहीं हूँ, मैं अहमदी नहीं हूँ। मिर्ज़ाई नहीं है वो, बिल्कुल ठीक है। तो हम भी मिर्ज़ाई नहीं है। मिर्ज़ाई कौन है? मिर्ज़ाई का लफ़ज़ सुन ले, मुंशी कासिम साहब ने इस्तेमाल किया। वो छोड़ दो यार, अभी मुझसे कासिम पे न जा। साहब ने इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, उसको छोड़ दो। अगर तारिक चौहान से आप पूछ लें कि क्या आप अहमदी हैं, वो कहेगा नहीं जी, मेरा ताल्लुक तो अपना जमात अहमद इस्लाही ग्रुप से है, मैं इस्लाही हर वो शख्स है आपके हाँ जो इस्तेमाल होती है अहमदी के लिए, वो जो मिर्जा साहब को मानने वाले हैं लाहौरी भी अहमदी है, आपकी किताबों में लिखा हुआ है वो अहमदी। ये अलग बात है कि आपने भी उनके खिलाफ फतवे दिए, उन्होंने आपके खिलाफ दिए। तो मुसलमान कौन होता है? मुसलमान जो मिर्जा साहब को नहीं मानता, जो किसी रसूलुल्लाह के बाद किसी झूठे मदय्यद को नहीं मानता, मुसलमान। ठीक है, तो उमेर बाप जो है वो मिर्जा साहब को मानती है? नहीं मानती। आप उसके इस्लाम में अपना शक क्यों करते हैं? नहीं, मैं कोई नहीं होता किसी के, मुसलमान हो या ना हो। ना। आपने कहा मैं किसी के ऊपर फतवा देने वाला, किसी को काफिर करार देने वाला कोई नहीं हूँ। हाँ, मुझे तो किसी की सुन ले मुझे किसी की एक्टिविटीज पे शक है तो मेरा राइट है कि मैं उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखूं। तो उसको आपकी एक्टिविटी हमें तारिक तो वो रखें ना, वो बिल्कुल रखें। हमें तो तारिक चौहान की, हमें बीबी सफिया की एक्टिविटी पे भी शक है। हाँ तो ठीक है, रखें। ठीक है, फिर रखें। आप उसमें क्यों पुड़ के आ जाते हैं मेरे मोहतरम? जब आप तारिक चौहान से बात करते हुए किसी तीसरी औरत को लेकर आए थे। तीसरी औरत नहीं, हमारी अपनी औरत है। आपकी नहीं है वो, आपकी अपनी होती ना, आपकी अपनी थी, आपकी तो अपनी थी ना। सुन ले नहीं, आपकी है फिर। मैं बताता हूँ ना, सुने ना। हाँ, जो आपकी अपनी थी ना, हाँ। जब उनके ऊपर बात आई, आपने मुझे बोला बिलाल हरामजादा है। आप ये बताएं, बोला था ना आपका खून खोला आपका, तो ये सफिया साहब की तरफ दफा क्यों नहीं खोला आपका खून? आप ये अपनी थी ना। मेरी बहनों को बंदा बात करे तो मैं तो, मेरी बहनों को बंदा बात करे तो मैं तो उसका मुंह तोड़ दूं। नहीं, वो आपकी है। आपका अमल साबित कर रहा है कि आप नहीं समझते उनको अपनी। नहीं, वो आपकी है। मेरे कहने की तो जरूरत ही नहीं है। वो मेरे बाप को आप अपनी बहन समझते हैं? वो मेरे बाप को समझते हो? अगर वो मुसलमान है, बिल्कुल बहन है मेरी। तो फिर उस वक्त किधर आपकी गैरत गई है कि आपके बंदे ने उसके कपड़े उतार दिए चौक में खड़े करके उसे? बिल्कुल हजरत अली की वजह से बिल्कुल नहीं। कोई नहीं। कपड़े उतारने की जो बात हुई थी वो सिर्फ इस जमाने में हुई थी कि उन्होंने हमारे खिलाफ जगह जगह पे लोगों को बातें की कि ये खत्मे नबूवत के मुजाहिद ये हैं, वो हैं, फलां हैं, ढिमकान है। जब कोई बंदा हमारे मौकफ के खिलाफ जाएगा, हम उसे गद्दार समझते हैं। तो सफिया बीबी हमारी, तो सफिया बीबी को मैं गद्दार समझता हूँ, हमारे मौकफ के खिलाफ जाती है, तो मौकफ के खिलाफ जाती है। सफिया बीबी साहब कौन से, वन सेकंड, सफिया बीबी साहब आपके कौन से मौकफ के खिलाफ गई हैं? हमारी खिलाफत के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं है। उनका कौन सा लफ्ज आपकी खिलाफत के, जरा निकाले आपकी खिलाफत के खिलाफ उनका कौन सा मौकफ? उससे पूछ लो। वो कहती है कि अल्लाह ताला हमें वो खलीफा अता करे जो हमारे घरों में राशन दे के आए। मुझे उसने तो कहा कि मैं इस निजाम पे लानत भेजती, ये कुत्ते के बच्चे हैं सारे। किनको कहा था? नहीं है हमें, किनको कहा था? ये सारे कुत्ते के बच्चे हैं। किनको जरा नाम ले। उनको हमें सबको सारी जमात को। उस पे उन्होंने माजरत भी की थी, ये भूल गए आप? ये भूल गए आप? इस बंदे के साथ कोई बंदा बात कर सकता है कि लागू है? किधर उधर घूम रहा है। लेकिन जब आप बात करेंगे तो आप उसूल पे करेंगे। उसूल से आगे पीछे नहीं। तुम्हारा कोई असूल है ही नहीं, तुम लागू हो। ठीक है कि हर जगह पे बात क्यों कर रहे जिधर हैं? मर्जी घूम जाओ। वो जो बहन आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? अगर मेरा उसूल ही नहीं है तो आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो तुम्हें यही कह रहा हूँ ना। तो रहने दो, फिर गाली गलौज तक बात चली जाएगी। नहीं, गाली देंगे, अगर मुझे गाली लाख दफा दे, मुझे कोई नहीं है। नहीं, मेरा दिमाग खराब है, मैं गाली दूंगा। अगर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी बंदा मुझे जाती तौर पे गाली देगा, मुझे कोई नहीं उससे फर्क पड़ता। लेकिन मेरा दिमाग खराब है, सब जो भी बात रखनी है उसूल एक रखा करें तो बात हो सकती है। असूल क्या है? क्या असूल है मुझे बता। असूल ये है, हाँ, असूल ये है कि माँ बहन सब की सांझी हैं। बिल्कुल, ये असूल है ना? बिल्कुल। हाँ, तो मेरे बाप सांझी है, आपकी कि नहीं? बिल्कुल ठीक है सांझी। हाँ, तो आपके भाई ने उसके कपड़े उतारे चौक में खड़ा करके, तो क्या किया? बिल्कुल उनका ये मतलब नहीं है जो आप मतलब ले रहे हैं। बिल्कुल उनका ये मतलब नहीं। तो मेरा भी मतलब जो मैंने को गलत बात की है, फिर बताएं आप क्यों गैरज की है इतनी ज्यादा? आप चलें, ठीक है, ओके। मैंने तो कपड़े उतारने की बात नहीं की, मैंने तो शादी की बात की है।
तो ठीक है, फिर मैंने भी तो शादी की बात की थी, क्यों गुस्सा आया था? क्यों गुस्सा आया था कि आप एक अननोन औरत का नाम ले रहे हैं? मुझे कौन सी अननोन औरत? आपका कौन सी? तलक ही कोई नहीं था। अच्छा, वो आपकी सांझी है बहन जिसका नाम आपने लिया। अच्छा, ये ना 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 unknown ना ना ना, औरत। ठहर जा ठहर जा ठहर जा काकी, अस्तगफिरुल्लाह। ये बताओ, अननोन औरत कौन सी अननोन औरत बताएं तो जरा। जिस औरत का तुमने नाम लिया तूबा बीबी का, कौन सी औरत का नाम ले? तूबा बीबी का, तो बीबी अननोन है। ठहरो ठहरो, वो तुम्हारे लिए सांझी है कि नहीं? सांझी भाई है? मेरे लिए तो मैंने कोई गलत बात की है? नहीं नहीं नहीं, वो सांझी है। बिल्कुल सांझी है। तो फिर एक की गैरत दिखाने के लिए दूसरी बहन का तुमने अपनी का नाम ले लिया। आप तो कह रहे हैं गलत बात की नहीं आपने। यार जा यार, जब आपने गलत बात नहीं की तो मैंने क्यों की? जब आपने, अगर सुन ले बात से मैं बताता हूँ, चलो ये भी मसला सोल्व, ये भी मसला सोल्व कर देते हैं। अगर आपने गलत बात की है वो मासिक साहब, वल्लाही मैंने 100% गलत बात की है। अगर आपने नहीं की तो मैंने भी कोई नहीं की। मैं कहता हूँ, और आपने जो गाली मुझे दी वो आपने वापस अपनी तरफ कर ली। जो कंक्लूजन जो है ना वो ये है कि आप लोग इतने बाइस हो कि खुदा ताला ने आपकी अकल मार दी है। नहीं, और बंदा बाइस होता है, सीधी सी बात है। हर बंदा, हम बाइस मैं नहीं भी बाइस हूँ। हम बाइस मुझे नहीं अपना है। अकीदा, मैं अपने अकीदे से मुखलिस हूँ, आप अपने अकीदे से मुखलिस हैं। यही बाइस ऐसे होती है। कोई भी अकीदा जो है ना उसको साइड पे रखें, अकीदा बाद में आता है, असल चीज ह्यूमैनिटी है। जितने भी अल्लाह ताला के नबी, वली, कुतुब, गौस जो भी हैं, वो सिर्फ इंसान की भलाई के लिए है, ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए। अगर तो ये दीनी तालीम, किसी भी दीन की तालीम आपको वो नहीं सिखाती, वो दीन ही नहीं है, वो नबी ही नहीं है। कि अगर आप उसका दम भरें और कहें कि हम उसकी तालीम पे चलने वाले हैं, और आप इतने बाइस हैं और आपका दिमाग इतना पोल्यूटेड है, then you are not on a right track। बिल्कुल ठीक है। दीन ही नहीं। जो बंदा बॉटम लाइन, ठीक है, आपकी बॉटम लाइन खत्म हो गया, बात मौका देना। जो बंदा ऐसी बात जो अपने लिए पसंद नहीं करता, सुन ले, जो बंदा अपने लिए बात को पसंद नहीं करता, वाटर साहब रुको जरा, वो दूसरे को कहे और उसको जवाब में वो बात की जाए और वो आगे से गालियां दे, और जब उससे पूछा जाए तो वो कहे तो मैंने तो जायज बात की थी, रिश्ते की बात की थी। भाई अगर रिश्ते की बात की थी तो मैंने भी तो वही बात की थी, फिर क्यों गुस्सा आया? अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है मासिक साहब, मैंने भी गलत किया, मैं माजरत करता हूँ, आप भी कर ले, मैं भी कर लेता हूँ। चले और बिस्मिल्लाह करें मैं बिस्मिल्लाह। आपने गलत किया था ना, रवैये बदलने हो। यार एक मिनट बात तो सुने, आप कह रहे हैं कि ठीक ही है, आप इसको ठीक करना चाहते हैं कि गलत करना चाहते हैं? आपकी मैं कहता हूँ अगर आप इस पे माजरत करते हैं, मैं भी माजरत करता हूँ। नहीं इसको आप ठीक कहना चाहते हैं इसको, कि गलत करना चाहते हैं? जो करेगा तो फिर इसको पीक में इस बात को मैं ले जाऊंगा, डोंट वरी। आप एक दफा मान जाए कि ये ठीक बात है, ये तो आपको पता होगा। आपकी क्या चॉइस है? मेरी बिल्कुल वही है जो आपकी है। आप बिलाल साहब मोहतरम, आई गिव यू द प्रायोरिटी के टेक अ पिक। नहीं आप खुद चॉइस क्या है? तो वो आमर नजीर भी गलत है जिसने उस उम्मे सिस्टर बहन को इतनी गंदी चीजें कही थी। शेम है आप पर, शेम है आपके डबल स्टैंडर्ड पर, क्योंकि अब है ही गलत। यानी हम पे शेम है, बम्बास्टिक चीता है। शेम करो, बम्बास्टिक चीते हैं या बम्बास्टिक साहब चीते हैं? कोई चीता नहीं जी, मैं राणा साहब बम्बास्टिक साहब चीते हैं ना? गलत है। अगर बम्बास्टिक साहब चीते हैं तो आमर नजीर बब्बर शेर है। सेम है आज। उसने क्या, मैं गलत हूँ? मेरे भाई ने मुझे क्या, मैं गलत हूँ? इंसाफ हो ना तो लानत भेजो। जो गाली बम्बास्टिक को निकाली थी वो गाली आमर नजीर को निकाल के दिखाओ बिलाल तुम। सच्चा मेरे भाई ने मुझे गलत कहा और मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ गलत है, मैं भी गलत हूँ। राशिद राना मुझे गलत कह रहा है, बिल्कुल तुम कह रहे हैं भाई, आपका तो भाई आपको गलत कह रहा है ना, मैं कह रहा हूँ आपने अपनी गलती मान ली है, मैं भी गलत हूँ। तुम्हें जरूरत है तो आमर नजीर को गलत कह के आमर नजीर को बुलाए, इधर अभी बात कर लेते हैं या सुबह बात कर लेंगे। नहीं छोड़ा उस बंदे ने। नहीं आप अपना गुस्सा ना निकाले, आप आराम से रेस्ट किया करें। अच्छा मेरे भाई ब्रेक लो, रेस्ट कर ले। जो गल करने की माइक अगर बम्बास्टिक साहब ये समझते हैं कि वो गलत है तो मैं कहता हूँ मैं भी गलत हूँ, बात खत्म। अगर बम्बास्टिक साहब चीते हैं तो आमर नजीर बब्बर शेर है।
ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਬਿਲਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਲਾਲ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਕ बिलाल हनीफ साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। इससे एक मिनट बोम्बास्टिक साहब, इजाजत दो थोड़ी। यार ये जड़े ना राणा राशिद राणा साहब पता नहीं इजाजत वो दो, खेलन इजाजत को मांगे दो। चांद इतनी बड़ी ख्वाहिशात नहीं रखी दियां। मेरे बारे में कोई कमेंट ना करें, इजाजत मैंने कोई गलत बात नहीं की। हाँ। मैंने बिल्कुल दुरुस्त तुसी कहा। ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश बहुत बड़ी है, ये ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश हमारा सारा मुकदमा खराब मत करें प्लीज। होस्ट को बात करने दे, होस्ट को हमारा बात सारा मुकदमा आके आप ऊपर डाल रहे हैं जो हमने राशिद उखाड़ राणा के साहब, दिया ना। राशिद राणा साहब भाई आप प्लीज चांद प्लीज चुप करो मौलवी साहब को। मौलवी साहब काइंडली ये क्या प्लीज मौलवी साहब, गलत मौलवी साहब गलत प्लीज, गलत कह सकते हैं। मौलवी साहब बड़ी ये मेहरबानी जो प्लीज प्लीज मौलवी साहब चुप कर मौलवी दें। साहब, हुसैनी साहब कुछ कहना चाहते हैं, यार दोबारा हुसैनी साहब बोलें जी। जी बड़ी मेहरबानी। अब आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस देख लिया है ना कि मैंने किस वक्त दरख्वास्त करनी शुरू की है कि यार मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दो। मेरा नाम राणा साहब ने होस्टर रखा हुआ है और ये मेरी अथॉरिटी और ये मेरी हैसियत है कि मैं एक दो लफ्ज़ कहने के लिए दरख्वास्तें कर रहा हूँ और कोई मेरी सुन नहीं रहा। और नाहक काम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे सो आप करें, हमको बस बदनाम किया। हसरत ने ये बात कही थी, तो बात ये है कि मैं किसी को रोकूंगा तब भी नहीं जब तो मेरी बात मानेगा। मुझे तो की भी इजाजत नहीं देते। कह रहे हो ये है कैफियत। इसको मैंने एक नमूने के तौर पे पेश किया कि ये कैफियत है। मुझे मुदाखलत करके मैं अगर किसी को रिक्वेस्ट करूं कि भाई तुम जरा गालियों का रेट थोड़ा कम कर दो, तुम अपनी आवाज को थोड़ा सा कम कर लो, चलो अभी जरा रुक जाते हैं, 5 मिनट सब्र कर लेते हैं, ये बातें कहने के लिए कोई मेरी बात सुनेगा तो फिर है ना। अगर वो कोई नहीं सुनना चाहता, सारे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मुझसे ये तवक्को करना कि मैंने रोक क्यों नहीं दिया। किसको रोकना था मैंने, जो मेरी बात ही नहीं मानते। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो बंदे इस जगह मौजूद नहीं है उनको टारगेट करके कि उनको गालियां दो, फला करो, ये नहीं कहना चाहिए। जो हाजिर है यहाँ पे बात कर लें, गुफ्तगू जब कोई दूसरा जिसके साथ आपको कोई ग्रज है, कोई बात है, जब वो आएगा तो फिर उसके साथ भी कर तरह फर्क मलूज़ खत रखें। जज़ाकल्लाह हुसैनी साहब, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नहीं राणा साहब, ये आपने राणा राशिद साहब बहुत अच्छी बात की है। राणा राशिद साहब बहुत अच्छी बात की है कि ये अपने बाप आबा नजीर को कभी गलत नहीं कहेगा। राणा साहब मुझे यही उम्मीद थी आपसे, बहुत शुक्रिया जी। करेगा अस्सलाम वालेकुम। दशले अजीम है तो तारिक चौहान साहब तो अपने ही करवाना बेचारे। नहीं, ये नहीं कहा है, 21 लेवल की आईडी है नीचे। सर जी बात दरअसल ये है कि तारिक चौहान जो है वो इनकी झोली में बैठा हुआ है, इनका टॉय बना हुआ है। ये देखो किसने कहा ऊपर है कि अहमदियों के साथ बदतमीजी करना और इनको खुश करते रहना। मैंने भी ले लिया। ठीक है, जैसे चल रही है इसको एंजॉय किया जाए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाह। इसी साहब, तरह मोहम्मद हुसैन साहब भी है, उनका भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। ये अली वाला भाई आए हैं, वो गल्ला उनको सच बोलने के बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन अहमदियों के खिलाफ हमेशा झूठी बोलेंगे। मुस्लिम जड़े आमदे बड़ी बड़ी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। इसी को अजमा कहते हैं, मेरा ख्याल है इस्लाम में सारे झूठे जब मिल जाएं तो उसको अजमा कह देते हैं। ये की कर रहे हो वाटर साहब, इस तरह ना करो। सारे इस्लाम नो तो बेड़ा गर्क करने लगे आमदे हो, दबी लगे आमदे जो तो इस तरह ना करो। हुसैन साहब ये वही गल आ जाती है ना, जे अगर मैं गलत हूं तो पूरी दुनिया ही गलत है। हुसैन साहब गल इंज है कि मैं किसी की गल नहीं साहब, बात दरअसल ये है कि यार मिनट ला ला वाटर एक मिनट भाई मैं म्यूट ला के बैठे हैं, तुम हुने आए हैं। एक मिनट यार, मुसलमानों के सारे फिरकों में से एक भी पड़ा वाला बंदा जो है ना, और एक भी जिसको कहते हैं ना कि साहिबुल माल और साहिबुल अकल, कभी इनकी ब्रॉडों में भी नहीं देखा। अच्छा ठीक है। सारे टुटक भजे 2 नंबर लोग, झूठे लोग, नबूवत की मुजाहिद बनते आ गए हैं। वाटर साहब, बराडा तो बाहर भी बहुत सारे बंदे ने, बराडा तो बहुत थोड़े जे आदमी जिन्होंने जो अकाउंट में वही आमदन, बाकी जी जी वही तो कह रहा हूँ कि कभी कोई ऐसे मेहमान भी इनकी ब्रॉडों में कोई चज का बंदा नहीं है। साहब हमारे सबर को हमारी कमजोरी ना समझा जाए प्लीज। हुसैन साहब
ਜੀ ਇੱਕ ਜੀ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਆ ਜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਔਰਤ ਦਾ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਾ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਵੇ ਕਾਬਿਲ ਇਹਿਤਰਾਮ। ਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਿਕਟਰ ਬਾਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸਖਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾ ਜਾ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣ ਭੈੜਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਖੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਕਿ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਵੇਂ ਅਲਾਮਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਬਲਾਲ ਹਨੀਫ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ। दोबारा कह दें, दोबारा कह दें प्लीज। ठीक है यार, कर लो। चलो भाई दोबारा कह दें कि कोई भी हो, सबके नाम ले दें प्लीज प्लीज। अब नजीर का भी ले दें, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं। ਆਹੋ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਸਲਾਮਤੀ। राजा तालमनाथ साहब का नाम ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆ ਜੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ नहीं रिकॉर्डिंग करनी थी ना, प्लीज कर देना दोबारा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨਾ ਮਸੀਹ ਮੁਸਲਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਨੇ।